جناب عید ہے, مسرتیں ہیں, شادمانیاں ہیں, خوشیاں ہیں, سیلیبریشن ہے, سوشل اور سماجی زندگی کی برکتیں, یہ ہمارے دین اسلام کا جناب مزاج بھی ہے. اور ایک دوسرے کے قلوب میں خوشی داخل کرنے سے خود بھی خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا ہے. ہم نے جناب اپنے سیلیبریٹیز کے لیے طعام کا بھی اہتمام کیا ہے اور کیٹرنگ ہم نے کروائی ہے ماموں کباب ہاؤس سے. اور یہ جناب پاکستان میں بہت ہی مزیدار بیف, چکن اور کیا کہنا چاہیے میٹ کے حوالے سے یا مٹن کے حوالے سے ان کے کباب اور دیگر جو باربیکیو آئٹمز ہیں وہ بڑے مشہور ہیں. اور ہم نے اپنے سیلیبریٹیز کے لیے, مہمانوں کے لیے طعام کا اہتمام کیا ہے. تو آئیے سب کو بلاتے ہیں, کیونکہ ابھی بریک سے پہلے ہم نے اتنے سارے پکوان ڈسکس کیے ہیں تو سب کے منہ میں پانی آ رہا تھا. میں نے کہا میں زیادہ انتظار نہیں کراتی اور ون بائی ون سب کو یہاں مدعو کرتی ہوں, بلاتی ہوں. تو ہم سب سے پہلے بلا رہے ہیں جناب ارم ضیاء صاحبہ آپ کو. آئیے, صفا فاطمہ, سمیرہ سحر, سعدیہ اقبال, نورین اور ہماری پیاری سی امبر اشرف, آ جائیے. آپ سب کے لیے یہاں طعام کا اہتمام ہے. بفے ہے فرام ماموں کباب ہاؤس. ماشاء اللہ سے دیکھتے ہیں ماموں کباب میں کیا ہے. ماموں کباب کی جانب سے جناب چکن ٹکا ہے, بہت ہی یمی اور ٹیمپٹنگ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور ہم نے کیا چندن کباب ارینج کیے ہیں بیف کے, بہت مزیدار. بیف کے کباب بہت جوسی ہوتے ہیں. اور یہ پوری پراٹھے موجود ہیں ماشاء اللہ. اور میٹھا نہ ہو ایسا, یہ تو عید پہ اگر میٹھا نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے. تو جناب ربڑی ماموں کباب کی جانب سے. اور جناب یہ دیکھیے میٹھے دہی بڑے بھی موجود ہیں, لیکن اگر آپ کو مٹھاس زیادہ پسند نہیں ہے تو آپ اس میں چاٹ مسالہ ڈالیے, آپ اس میں پاپڑی ڈالیے اور مزیدار سے جناب اپنا جو ہے وہ یہ ہم آپ کے لیے لنچ کا اہتمام کیا ہے. آئیے لنچ میں تو شاید تمہیں مائک لے کے کچھ بولنا ہوگا. اور تم میرے ساتھ ہی لے لو. آپ لیجیے. تھینک یو, تھینک یو. آپ بھی لیجیے. آپ لیجیے. تم نے لے لی, میں آپ کو دوں. یہ سیلف سروس ہے بھائی, میں نہیں نکال کے دے رہی تاکہ میں نے کم نکال دیا. جی 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 یہ لے لیجیے آپ کو. آپ کو دوں. نہیں میں صفا آپ نے اچھا لینا ہے, میں آپ کی پلیٹ پہ نظر رکھی ہوئی ہوں کیونکہ آپ بہت کم لیتے ہیں. جی لو بھائی. یمیاں منع کے لیے بھی نکالو بھائی. آپ کو کیسا لگ رہا ہے جناب یہ ماموں کباب کی جانب سے یہ سارا ارینجمنٹ جو آپ نے کیا ہے آپ اپنے سب مہمانوں. ماموں کباب بہت اچھے ہوتے ہیں, اور اگر آپ ان کے جو جگہیں ہیں ان کی الگ الگ کراچی میں وہاں جا کے کھائیں تو بڑی اسپیشلٹی ہے ان کے پاس, اور چیزیں بھی ہیں. اور واقعی ٹیسٹ انہوں نے بڑا مینٹین کیا ہوا ہے کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں اور ان کے کھانوں سے محظوظ ہوتے ہیں, جن میں سے ایک ہم بھی ہیں. ماشاءاللہ. تو آپ خوش ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے صحیح کیٹرنگ کروائی. بالکل بالکل, ٹھیک ہے, بہت اچھی چوائس ہے. تھینک یو, تھینک یو. جی جناب, تو یہ ہے دعوت طعام. اچھا ہے ان کا. اے آواز ٹوٹی بھی کی جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہمارے ساتھ آپ کے پسندیدہ سٹارز موجود ہیں, کیو ٹی وی کے سٹارز, اے آر وائی کے سٹارز, کہ جنہیں آپ پسند کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے جناب ماموں کباب کا کھانا؟ بہت مزے کا, کیونکہ بہت ویسے بھی مجھے بہت پسند ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست. کھاتے ہیں, جا کے بھی کھاتے ہیں. اور اچھا, اور میرے بچے جو ہے نا ماموں کے جو رولز بنے ہوئے آتے ہیں نا وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں, بہت مزے کے. بوٹی رول. بوٹی رول تو وہ
ہم لوگ اکثر و بیشتر کھاتے رہتے ہیں وہاں. اصل میں ماموں کا لفظ ہی ایسا ہے جس میں بڑا پیار اپنائیت ہے نا, اپنائیت ہے. تو میرے خیال سے انہوں نے بھی بڑا سوچ سمجھ کے نام وہ ماموں رکھا ہوگا. میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ کھانے سے زیادہ تو نام پیارا ہے کہ نام پیارا ہے. ماموں کہتے ہیں ماما, جب ہم اپنے ماموں کو ماما کہتے ہیں تو دو مائیں ملتی ہیں تو ایک ماما بنتا ہے. تو ماموں میں بڑا پیار ہوتا وہ اکثر کہتے ہیں ماموں بنا رہے ماموں بنا رہے. کیا مطلب؟ ہاں بھائی یہ کیوں ہماری ہری مرچوں کی طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ماموں بنا رہے ہیں, یہ کون سا مسئلہ؟ لیکن نہیں, واقعی ایک حقیقت ہے کہ ماموں ماں کی طرح ہی پیار کرتے ہیں. اور جیسے میرے جو سب سے چھوٹے ماموں ہیں تو ہم انہیں مما کہتے ہیں. اچھا. تو وہ میری اماں بتاتی تھیں کہ مطلب وہ کہتی ہیں کہ میرا کیونکہ چھوٹے تھے سب سے گھر میں, تو ان کو میری نانی کے اور میرے نانا کے انتقال کے بعد میری امی اور میرے ابا نے پالا تھا, اپنے پاس رکھا تھا ان کو. تو کہتی ہیں کہ میرے بچوں کے پیمپرز تک یہ چینج کرتا تھا. تو واقعی ہم انہیں مما ہی کہتے ہیں. تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے سن کے, کیونکہ مما عموماً نہیں کہا جاتا, ماما تو کہا جاتا ہے, لیکن وہ بس پتہ نہیں کس وقت پڑا ہوگا نام اور کبھی کہتے ہوئے وہ احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن واقعی بڑے پیارے رشتے. اور میں سمجھتی ہوں کہ رشتے جو ہوتے ہیں نا ندا, وہ زندگی کو بڑا خوش رنگ بناتے ہیں. تو رشتوں کو بڑا سنبھال کے رکھنا چاہیے. اور یہ رشتے جو ہیں یہ بنیادیں ہیں آنے والے کل کی. آپ یہ دیکھیے ارم کہ ہمارے مذہب میں رشتوں کو جوڑنا اس کی کتنی اہمیت ہے صفا, صلہ رحمی کے تعلق سے. یعنی ہمارا مذہب کتنا زور دیتا ہے اس پہ, کیا فرمائیں گے؟ بالکل یہی تو وجہ ہے کہ سیلیبریشن کا اس طرح خوبصورت یہ 2 دن ہمیں دیے گئے, عید الاضحیٰ کا بھی اور عید الفطر کا بھی, تاکہ اگر کچھ ایسے افراد ہیں جو ویسے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے تو کم از کم ان دنوں میں تو اس کا اہتمام کر لیا جائے, تاکہ کلوزنس کا احساس ہو, محبتیں آپس میں شیئر ہوں, اور انہی کے ذریعے ظاہر ہے کہ رشتے قائم رہتے ہیں اور ان میں مضبوطی آتی ہے. اور میں یہ بھی ندا آج کیونکہ اتنی اچھی ماشاءاللہ یہاں پہ بڑی یہ ایک ARY کی طرف سے بھی ایک بڑا پازیٹیو آئی مسٹ سے کہ اسٹیپ ہے کہ اتنا اچھا انہوں نے یہ سارا انتظام کیا ہے ARY QTV کی طرف سے, کہ تم یہ دیکھو ہم لوگ جب اپنے گھروں میں بڑی بڑی دعوت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خاص کر عید بقرعید کی دعوتوں میں ہم اپنے ان رشتہ داروں کو ضرور بلائیں جنہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ اتنے صاحب حیثیت نہیں ہیں. ان رشتہ داروں کو اپنے گھر بلا کر ان سے اتنی عزت اتنے پیار سے ملے تاکہ ان کی عید بھی ان کے لیے عید ہو جائے. بالکل. اور وہ انتظار کرے ہر سال عید کا کہ یار عید آئے گی تو ساتھ میں یہ بلاوا بھی آئے گا, اور پھر وہی عزت وہی محبت وہی تکریم ملے گی. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر جیسے ایک رواج یہاں برابری کیوں ہے ارم صاحبہ, یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس نے ایسا ہمارے لیے ارینجمنٹ کیا تو ہم بھی کریں گے اور اسی کو بلائیں گے کہ جو اچھا ہمیں بدلا دے سکتا ہے. بالکل. یہ تو دیکھو مقابلے بازی میں ہم نے کیا کیا ہے نا کہ بہت زیادہ ہو گیا, اصل کو کھو دیا نا. اس مقابلے بازی میں ہم نے اپنی اصل کو کھو دیا. تو سرکار علیہ السلام نے تو فرمایا, اس وقت تو دعوت ولیمہ زیادہ ہوتی تھی, کہ آپ نے ایسی دعوت کو سخت ناپسند فرمایا جس میں تمہارے غریب رشتہ دار موجود نہ ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ اتنی خوشی کے موقع پہ جو اللہ کے تحفے ہیں جو ہمیں بار بار ملتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کے ان بندوں کے ساتھ مل کے شکر ادا کریں جنہیں اللہ بہت پسند کرتا ہے. جیسے میں بتاؤں ندا, میں عید والے دن ویسے بھی حال چال رہتا ہے, بٹ آئی ہیو لرن دس فرام مائی مدر ان لا, کہ میں عید والے دن اپنی میٹ سے گلے ضرور ملتی ہوں. اور یقین مانو ان کے چہروں پہ جو خوشی ہوتی ہے نا, اور یہ میں نے اپنی ساس سے سیکھا تھا کہ وہ گھر کی تمام جتنی بھی میڈز ہوتی تھیں ان سے جو کام والے گلے ملتی تھی. تو آپ اگر اس طرح سے کریں, اور مرد حضرات جیسے ڈرائیور ہوتا ہے, گیٹ کیپر ہوتا ہے, آپ کے پرسنل گارڈز ہوتے ہیں, اگر آپ ان سے گلے ملتے ہیں تو وہ ان کا دن آپ بناتے ہیں یار. یہ میں کہتی ہوں یہ ضرور ہونا چاہیے. بالکل کہ وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے مہمان. اچھا, بعض باتیں کبھی کبھی ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم صرف یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں, وہ ہم اپناتے نہیں ہیں نا بعض لوگ ایسے. لیکن میں یہاں پر ارم باجی کی فیملی کا بتاؤں, اب میرا ایک دفعہ ان کے گھر جانا ہوا ہے, اتفاق تھا. تو میں نے جو ان کی فیملی میں جو باؤنڈنگ دیکھی ہے نا جوائنٹ فیملی میں, ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے. دیورانیاں بھی اور یہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے. اور پھر سب سے شروع میں تم نے ان سے سوال کیا کہ مہمان نواز کتنی ہیں آپ, تو میں نے واقعی ان کو اسی طرح پایا. گیسٹ ہم ان کے تھے, لیکن
जो हमें टेक केयर कर रहा था और हमारी लुक आफ्टर कर रहा था कि हम कहाँ बैठे, कहाँ बैठे, कैसा खिलाएं। हमारी ख़वातीन मेहमानों को देख के मुंह बना लेती हैं, बिल्कुल ऐसी नाराज़ी का इज़हार हाँ। करती हैं। और मेरी कमिटमेंट कहीं और थी, हाँ मुझे कहीं और भी जाना था, तो इनकी देवरानी फ़ौरन आई कि मुझे कहीं जाना है। इनको बताया कि ना नौरीन जाएंगी वापस, तो उन्होंने बस जाते जाते में भी ना फ़ौरन एक निवाला बनाया बहुत अच्छा सा ना, नहीं आप ऐसे नहीं जाएंगी हमारे यहाँ से, कुछ खाए बिना तो ऐसे नहीं जाएंगी, मोहब्बत। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो होती हैं ना वो आपको अट्रैक्ट करती हैं। जॉइंट फैमिली में एक दूसरे को इतना अच्छा रिस्पांस देना, उनके गेस्ट को अपना गेस्ट समझ के उसके सामने पेश आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इनकी बात को इसी तरह से कंटिन्यू करूँगी कि आपको खुद इतना अच्छा होना है, हर चीज़ का ख्याल रखना है। ये मैंने इनके घर में बहुत अच्छे से देखा है। और अंबर यही बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा खातून जन्नत का फरमान है कि आपके घर अगर कोई मेहमान आ जाए तो उन्हें जो है मतलब पानी पिलाए बगैर भी भेजना भी ऐसा है कि कब्रिस्तान की तरह। तो मेहमान नवाजी करनी चाहिए। क्या पता मेहमान जो आ रहा है आपके घर, उसकी बरकतों से अल्लाह पाक और होता है क्या पता नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली होता है, बिल्कुल लेकर आता है। कौन कौन सी बलाएं अपने साथ ले जाते अपने साथ। लेकिन निदा ने अभी जो बात कही ना कि दरवाजा खोलते ही बस वो मेहमान आए तो मुंह बन गया कि अब तो काम करना पड़ेगा, ऐसा होता है। खाना आपने लिखा ही मुशाहिदा है मेरा, होता है। हर घर में ये मेहमान नवाजी नहीं होती। हाँ, यानी अगर शौहर हज़रात कह दें कि बेगम वो मेहमान आने वाले हैं, तो वो बेगमात का मुंह बन जाता है सर पे पट्टी बांध के। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है, मैं कैसे अरेंज अच्छा, उसमें भी थोड़ा सा ये होता है कि अगर मैके वाले आ रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा चहक रहे होते हैं, अगर ससुराल वाले आ रहे हैं तो थोड़ा सा मोराल डाउन होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर हमेशा कहती हूँ मेहमान होता है, मेहमान होता है, रिश्तेदार होता है। और आपकी जो औलाद है ना वो दोनों घरों से मिलके मोहब्बत पाके परवरिश पाती है। ऐसा ही है। सफ़ा से इसलिए नहीं पूछ रही, सफ़ा अनमैरिड है तो हम दुआ को भी है सफ़ा के लिए माशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन सफ़ा अपने मामू चचा तायाओं को तो देखती होगी ना, अपने मेहमान नवाजी की क्या इम्पोर्टेंस है, और इन त्योहारों पे स्पेशली आप इसको किस तरह देखती हो और क्या मैसेज दोगी हमारी बहनों को? जी बिल्कुल, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का भी जिक्र हुआ कि मेहमान आता है तो अपना रिस्क लेकर आता है और मग़फ़िरत करवा के जाता है। सुभान अल्लाह। तो दुनियावी तो बहुत सारे फ़ायदे होते ही हैं, लेकिन जब उखरवी फ़ायदा मिल रहा हो तो इंसान को ज़्यादा उस तरफ राग़िब होना चाहिए कि उखरवी फ़ायदा भी। अच्छा, फिर एक और चीज़ मैंने ये देखी, हम घर में इतनी मेहनत नहीं करते हैं आमतौर पर, सादा सा कुछ खाना बना लिया, लेकिन जब मेहमान के आने का हम सुन लेते हैं कितनी खुशी होती है। तो उसको तो अच्छा खाना हम खिला ही रहे होते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमें भी जो शायद हम अपने लिए ये सब कुछ एहतमाम ना करते, लेकिन उसकी वजह से हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो रिस्क में जो है वो शामिल फरमा लेता है। तो ये भी बरकत ज़ाहिर है कि होती है, और इस तरफ यकीनन तवज्जो भी होनी चाहिए हमारे। सफ़ा को असल में मेहमान सफ़ा को यूनिवर्सिटी जाना है ज्यादा खा रहे होते पढ़ाने के लिए, सुनो सफ़ा को यूनिवर्सिटी जाना है पढ़ाने के लिए, या सफ़ा का पेपर है, या सफ़ा बिजी है, या सफ़ा का कोई प्रोग्राम है यानी इस्लामिक, और मेहमान आ गए तो सफ़ा का क्या रिस्पॉन्स होता है? नॉर्मली मेरी जो मसरूफियात हैं बाहर की तो वो डिस्टर्ब नहीं होती हैं, वो चलती रहती हैं। मेरी वालदा इस सिलसिले में मेरी बहुत हेल्प करती हैं। ये ज़रूर होता है कि मेरे पीछे अम्मी काम कर रही होती हैं, लेकिन जब हम घर पे आते हैं तो जाहिर है कि फिर उसको हम सारी जिम्मेदारी, फिर जो बाकी बचा हुआ जितना भी काम होता है खुद हम मैनेज कर लेते हैं। तो वालदा की इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमारे साथ, वरना जाहिर है कि मुश्किल हो सकती थी, वरना घर से बाहर के काम इतने आसान नहीं होते हैं ख़वातीन के लिए। बिल्कुल, लेकिन वालदा की सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो जाता है। सफ़ा शरारती है? बिल्कुल भी नहीं, वैसे तुम्हें देख के लगता है मैंने ये सवाल बिल्कुल भी नहीं। सफ़ा से पूछने ही चाहिए था, तुम्हें पूछना चाहिए था कि सफ़ा तुम्हें पता है कि शरारत शुरू किस हर्फ से होती है? पता है? चलो ये बताओ। मैं हमेशा से खामोश तमाशाई रही हूँ। अच्छा। और मैं शरारतों का कभी भी हिस्सा नहीं रही, कभी भी। हाँ, ये ज़रूर है कि दूसरों को देखते थे तो कुछ अच्छी शरारतें होती थी तो खुश हो जाते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कभी भी ज़िंदगी में कोई शरारत करने का सोचा भी तुम्हारे सिबलिंग्स हैं बहन भाई, वो कैसे हैं? अक्सर मेरे जैसे हैं, अक्सर मेरे जैसे। ये बड़ा पढ़ाकू घराना है माशाल्लाह। इसकी एक और बहन है सदफ, वो भी आलिमा है माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। इसकी एक भाई भी आलिम दीन है, और खुद बताएगी बाकी है, मुझे सब पता है बोलेगी। फिर वैसे शरारती है, ये थोड़ी सी शरारती है, ये मैं आपको बता दूं, इसलिए मैंने ये सवाल किया था। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं इसको जानती हूँ। वैसे हम लोग को निदा से आज ये पूछना चाहिए आपको कौन सी शरारत याद है और अपनी कौन सी शरारत सबसे ज़्यादा पसंद है? शरारती तो वैसे मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, सादिया बहुत है। इसको शुरू से हमने इसी तरह देखा, ये तो सोबर अच्छा, थोड़ा अब थोड़ा बहुत करने लगी करती है। होगी ना।
चाहे सादिया ही करती हो, जैसे मतलब कोई सफ़ा है ऐसी ना कि शरारत। शरारती नहीं है, कभी मिजाह कर लिया। हाँ, ये भी तो- अब करने लगी है। हाँ, तो पहले मेरा तो भी बिल्कुल यही है भी कि नहीं मैं अब तो बाकायदा इन प्रोग्राम्स के लिए मुझे वो कहते हैं ना तारी करना, तो मैं सुबह से तारी कर रही थी अपने ऊपर कि मुझे इनफैक्ट कि मुझे अपने यानी थोड़ा सा एक होना चाहिए, वरना मेरे मिजाज का ये हिस्सा है नहीं, मैं सोबर ही रहती ये तो अब हंस भी लेती है, वरना इतना ज़्यादा ये हंसती भी नहीं थी। हम इसको अक्सर और बेशतर मिलाद में अब जब आना होता तो इतनी सोबर आती थी ना, तो फिर हम भी यूँ बैठ जाता, हमें यूँ बैठना पड़ता था। ये लोग मुझे कहते थे, तो मुझे अब थोड़ा मैंने हंसना हाँ। भी वैसे अब इसलिए कि आप लोगों सबसे दोस्ती हो गई है, बिल्कुल, और वो ऐसा एक भी कल्बी है। मैलान भी है, मुझे देख के अच्छा लगता है, आप लोगों से हाँ, बात ऐसा करके है। अच्छा लगता है। ये सफ़ा है तो मैं मेरे घर भी आती है और मैं इससे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, हाँ। तो इसलिए मैं खुद चाहती हूँ कि ये हंसे खुश हंसे। रहे, तो ये खुश होती है, बहुत अच्छा बोलती है। इरम साहिबा की आज बातें मैंने सुनी, और वैसे भी हम इनसे ऑफ एयर बात करते हैं, तो इनके अंदर जो एक यानी स्पिरिचुअल बंदी मौजूद है ना, जो इनकी रूह है वो बहुत प्यारी है, बहुत प्योर है, तो माशाल्लाह, मुझे ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। और जिस तरह से इनकी मेहमान नवाजी के हवाले से पूरा हमारा स्टाफ बात करता है, हमारी बहन साइमा इनका जिक्र करती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और सुमेरा सहर माशाल्लाह, हमारी बहनें इतनी प्यारी हैं कि मुझे स्कार्फ बांधना नहीं आता था, तो एक मर्तबा इन्होंने मुझे स्कार्फ बांधना सिखाया प्रॉपर, कि निदा आप इस तरह से फॉल्स इन लोगों का खुद का स्कार्फ बड़ा प्यारा ना बंधा अच्छा हुआ। बांधती हैं, बहुत अच्छा। तो ये सब यानी मोहब्बत ही तो है, मोहब्बतों की बात। और क्या है कि अगर हम लोग ये IV लगा रहे होते हैं, ये टॉक बैक और ये यानी कॉर्डलेस लगा रहे होते हैं, तो हम यानी प्रोग्राम से पहले जब हम शोज़ कर रहे होते हैं तो हम एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, और इतना अच्छा लगता है कि क्योंकि हम लोग स्कार्फ लेते हैं तो किस तरह से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटे छोटे मामलात होते हैं कि जिससे हम किसी के दिल में खुशी दाखिल कर सकते हैं, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस से शेयर करूं कि जब मैं आई थिंक 2014 में फर्स्ट टाइम QTV आई थी, तो एक होता है कि थोड़ी सी रिलेक्टेंस होती है, ज़रा सा इतना आप माहौल से आशना नहीं होते, लेकिन स्लोली और ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग ये जितने यहाँ बैठे हुए और जिससे यहाँ मौजूद नहीं है, सबके ही साथ प्रोग्राम्स किए, बहुत कुछ सीखने को मिला, और इतनी खूबसूरत आवाज़ें अल्लाह ने अता की हैं, इतने प्यारे कलाम सुने हैं। और अगर मैं शुमैला का नाम नहीं लूँगी तो बड़ी ज़्यादती होगी, बहुत अच्छा क्योंकि पढ़ती वो माशाल्लाह उसके कुछ नातिया कलाम ऐसे जो मैं कहती हूँ कि अगर वो किसी भी महफिल में होती है तो वो मेरी शक्ल देखते ही समझ जाती है कि अब इरम बाजी ये सुनेंगी। इरम बाजी ये ज़रूर सुनेंगी, तो वो एग्जैक्टली ऐसे ही। तैयारी कर लेती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा, माशाल्लाह। और इतने सालों का माशाल्लाह अब ये साथ हो गया है ना कि अजनबियत बिल्कुल महसूस नहीं नहीं होती होती रही है। और निदा ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप इतने अरसे तक किसी जगह से मुंसलिक रहे। सही सही। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये मैंने यहाँ देखा कि जो एक दफ़ा जुड़ गया तो फिर वो जुड़ गया, और क्या ये बात है। मोहब्बतों मुझे के 23 साल हो सिलसिले। गए, इसको 24 साल हो गए। माशाल्लाह। एक ब्रेक ले लें, वापस बिल्कुल। आते हैं, दुरूद पढ़ते रहिए। जी जनाब, शान ईद आप देख रहे हैं ARY QTV पे ज़र्राए नाचीज़ के साथ। हमारे साथ अंबर अशरफ मौजूद हैं, सैयदा अंबर अशरफ, हमारे साथ सैयदा नौरीन फ़ाइज़ मौजूद हैं, हमारे साथ सादिया अदील मौजूद हैं, हमारे साथ इरम ज़िया साहिबा मौजूद हैं, हमारे साथ सफ़ा फ़ातिमा मौजूद हैं, आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, और जनाब हमारे साथ सुमेरा यूसुफ और सहर अदील मौजूद हैं। तो ये मुझे बताइए, क्या ये दोनों अदील आपस में कोई भाई भाई तो नहीं है? नहीं माशाअल्लाह। देखें ये भी अपनाइयत है ना, तो यहाँ पे देखें हमें एक और रिजेम्बलेंस नज़र आ रही है। अच्छा ये बताइए अंबर, मैं अंबर आपसे शुरू करती हूँ कि अंबर के क्या मशागिल हैं, और अंबर अगर एक नातख्वां नहीं होती तो अंबर क्या करती? अंबर को और कौन सा प्रोफेशन पसंद है? प्रोफेशन तो कभी मैंने इसके हट के कुछ सोचा ही नहीं माशाल्लाह। तो शायद इसलिए कभी ध्यान ही नहीं गया। एक था लेकिन वो ख़त्म हो गया, लेकिन अल्लाह ने शुरू से ये था कि इंशाल्लाह कुछ नाम कमाना है, अब्बू अम्मी का नाम रोशन करना है इंशाल्लाह। और फिर जब थोड़ा सा अम्मी वगैरह को देखा तो बस नातख्वां बनना है एक, और बस ये बस छोटी सी थी मैं, बहुत शौक़ था कि मतलब अगर मैं अपने अब्बू से कहती थी, बहुत छोटी सी, मैं अब्बू से कहती थी अब्बू एक दिन ऐसा आएगा कि आप गुजर रहे होंगे ना, तो लोग कहेंगे देखो अंबर के अब्बू जा रहे हैं। तो अब्बू मेरे कहते थे। उस वक्त जब मैं बड़ी हुई और मेरा नाम मशहूर हुआ और अल्लाह ने याद मेरा आती थी ये नाम बात? मशहूर किया, तब मुझे समझ में आई अब्बू की बचपन की बात। अब्बू मुझे कहते थे कि फिर भी तुम मेरे नाम से पहचानी जाओगी। और अंबर खाली कहो तो कोई नहीं समझता था, अंबर सलीम कहते थे तो सब समझते थे कि हाँ ये
कौन है. सही बात तब है. बड़ी हो गई, अब मुझे फख्र भी होता था कि माँ बाप माशाल्लाह का फख्र बन जाना बिल्कुल कैसा लगता ऐसे, है? बहुत अच्छा. मतलब ऐसा लगता है कि आपको अल्लाह और उसके हबीब की तो आपको एक सना खानी का शर्फ मिला. सल्लल्लाहु अलैहि ऐसा लगता है कि माँ बाप की मोहब्बत भी साथ में झोली में डाल दी अल्लाह ने. अल्लाह और वो अब माँ बाप के नाम से बाप का नाम रोशन करना, बेटियों को तो वैसे ही बाप से बड़ी अटैचमेंट होती है. मुझे तो मेरी अम्मी से भी बहुत ज़्यादा थी और अब्बू से भी रही, तो उसका एक अलग ही लुत्फ होता है. आपकी एक डाई हार्ट फैन है फरजाना कादरी, वो मुझे भी मैसेजेस करती हैं, बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, भारत में रहती हैं, हिंदुस्तान में, और वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, बहुत बड़ी पंखा यानी समझते ना. तो वो आपकी तस्वीरों को यानी बड़ी बड़ी आपके पोस्टर्स बनवाती हैं और उनके साथ जो है वो खुद खड़ी होके और आपको कभी हक कर रही होती हैं, तो वो उनकी मोहब्बत का इजहार है. कैसा लगता है जब ऐसे प्यारे फैंस होते हैं और इतनी मोहब्बतें समेटना? यकीन करें बड़ा रोना आता है, और इसलिए कि आपको याद है अल्लाह ने चंद अरसे इतनी मोहब्बतें कबल डाल दी. उनकी कॉल आई थी लाइव हमारे एक शो में, ईद शो ही कर रहे थे हम लोग साथ बिल्कुल. ना. और उसके बाद उसके फ़ौरन बाद ही मेरा बर्थडे था, उन्होंने वहाँ पे एक रेस्टोरेंट बुक करवाया, उसमें मेरा बड़ा सा पैनाफ्लेक्स उन्होंने पोस्टर लगवाया और वहाँ पे सबको, अपने फ्रेंड्स को, सबको बुला के सेलिब्रेट गायबाना सालगिरह अंबर की इंडिया में मनाई इस साल गई. भी उन्होंने यही किया. माशाअल्लाह. फरजाना शायद हम ज़ाहिर मैं उस तरह नेमुल बदल नहीं दे सकती मोहब्बत का, लेकिन अल्लाह ने जो इतनी मोहब्बतें झोलियों में डाली है ना, बात ये कि उसका मोहब्बतें बड़ा हैं, करम है लोगों कि से जब ये मोहब्बतें सरकार मिलती के नाम का सदका है जो हमारी झोली. बच्चे खुश होते हैं? अम्मा बहुत, आपको लोग इतना यानी बहुत, आपके बच्चे फैन तो बहुत फॉलोइंग खुश इतनी होते सारी हैं. है, ज्यादा है. कहते, मम्मा हमें पता नहीं था, हम छोटे थे कि आप इतनी मशहूर हैं. अच्छा खुश होते हैं बच्चे. बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उन्होंने बस माँ को एक माँ के तौर पे देखा होता है. अशरफ भाई कैसे देखते हैं आपकी इस कामयाबी को? बहुत अप्रिशिएट करते हैं. अगर क्योंकि वो शौहर का मेरा साथ support- मुझे नहीं supportive होना बहुत समझते तो जरूरी है. आज मैं यहाँ पे मौजूद नहीं होती, घर देख रही होती बस. हाँ. मेरी सास, मेरी नंदे, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह वो अच्छा बहुत निदा, ये कोऑपरेटिव बिल्कुल है. एक हकीकी बात है. मैं हमेशा ये करती हूँ कि देखो शादी से पहले हम जो कुछ करते हैं हमारे बैक एंड पे हमारे पेरेंट्स खड़े होते हैं, मगर आफ्टर मैरिज हम जो कुछ करते हो तो हमारे बैक एंड पे हमारे हस्बैंड होते हैं, बिल्कुल. और अगर उनकी सपोर्ट ना हो तो मेरा ये मानना है कि हर कामयाब मर्द के पीछे अगर एक औरत है तो हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द. आपकी क्या मशागिल हैं यानी अदर देन अब होस्टिंग आपकी, यानी अब होस्टिंग भी करती हैं ना? मैं होस्टिंग भी की? एक्चुअली प्रोफेशन का शुरुआत जो थी वो तो पीटीवी से एज ए जी. होस्ट ही की थी, फिर लंदन में प्राइम टीवी 4 साल होस्ट करती रही, यहाँ के एज ए गेस्ट स्पीकर अपेयर होने लगी. लेकिन इसके अलावा ये कि क्योंकि दरस व तदरीस से वाबस्ता हूँ तो कराची की मुख्तलिफ जामियात में एज ए विजिटिंग फैकल्टी सेमेस्टर्स लेती हूँ. इसके माशाअल्लाह. अलावा मेरा जो एक बड़ा शौक़ है वो डिज़ाइनिंग का है, और अब अपना ब्रांड जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकायदा लॉन्च किया है, माहियार बाय रमज़िया. तो क्योंकि क्लोथिंग का हमेशा से शौक़ था, डिज़ाइनिंग करती थी, तो अब उसको एज ए प्रोफेशन भी लेते. और ये बिल्कुल 3 अलग चीज़ें हैं कि देखो सब्जेक्ट जो है मेरा वो इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो मैं यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाती हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह दीन मेरा शौक़ है कि मैं उसके लिए पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ. और बेसिकली ये लंदन में मेरे साथ हुआ था कि चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाने के बजाय आसान अल्फाज में दूसरे को समझाया जाए कि कोई दीन से घबराए नहीं. और ज़ाहिर अरबी हम लोग इतना नहीं सीखते हैं, तो मेरी यही कोशिश थी कि सूरा नंबर, आयत नंबर, उसका तर्जुमा बयान किया जाए कि दिस इज़ द रेफरेंस, कि वो चाहें खोलें और उन्हें सब कुछ मिल जाए. ये और फिर डिज़ाइनिंग एक बिल्कुल तीसरा काम. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि वाकई माँ बाप की दुआएं और कामयाबी का मेरा एक राज कि जब मुझे नहीं पता निदा कि अम्मा ने सिखाया या अब्बा ने सिखाया, लेकिन जब से कुछ बोलना सीखा अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़बान से दरूद शरीफ का सुभान अल्लाह. तो वो अगर बचपन की भी यादों में जाती हूँ तो मुझे याद नहीं पड़ता किसने दादी ने सिखाया, नानी को तो खैर देखा ही नहीं, अम्मा अब्बा ने सिखाया था, कुछ नहीं यादाश्त में. लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हमारी 3rd क्लास की बुक में सरकार अलैहिस्सलाम के हिजरत का वाक़या था. मैं सांप से बहुत डरती थी क्योंकि अब्बा की ज़मीनें सिंध में बहुत थी, तो अक्सर वहाँ हमारे घरों में भी सांप निकल आते थे. तो मैंने लुआब दहन किताब में से फाड़ के अपने पास रखा हुआ था. तो एक दिन मेरी अम्मी को मिला, उन्होंने कहा ये क्या है, वो तो उन्होंने सिर्फ लुआब दहन देखा. उनका ये क्या है, मैंने कहा अम्मी ये मेरे पास रहते हैं, मुझे जिस दिन सांप काट लेगा ना मैं ये लगा लूंगी और सही हो जाएगा. सुभान अल्लाह. माय फादर सेड दैट बिकॉज ऑफ हर बिलीव इसको अगर जहरीले से जहरीला सांप भी काट लेता ना तो ये सही हो जाता. तो मैं समझती हूँ अगर मैं तीनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें भी करती हूँ ना
तो सरकार अलैहिस्सलाम का सदका है। आज मैं जो कुछ हूँ, क्या बात मैं है। कहती हूँ ये सिर्फ दरूद शरीफ का सदका। बेशक सुभान अल्लाह। हम किधर जाते अगर आप ना आए होते, कौन कहलाते अगर आप ना आए होते। रब का मस्कन था जहाँ, बुत का ठिकाना भी वहीं, किसको अपनाते अगर आप ना आए होते। और बहरे जुल्मात में बेयारो मददगार थे हम, गर्क हो जाते अगर आप ना आए होते। और एक उम्मीद से मिला खल्क को दस्तूर हयात, सब बिखर जाते अगर आप ना आए होते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मदीना आमद हुई, हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों ने ईदैन मनाना शुरू की हैं। और उससे कबल भी अहले मदीना 2 ईदें मनाते थे, 2 त्यौहार मनाते थे, लेकिन वो ये कॉन्सेप्ट नहीं था जनाब। तो हुजूर ने जो 2 ईदें हमें अता फरमाई हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, ये उसके बाद। और ईद उल अज़हा का एक ख़ास पैगाम ये, और मुझे बड़ी फ़रहत और बड़ी मसरत होती है इस बात को आपसे शेयर करने में, जो मैंने अपने उस्ताद करीम मुफ्ती मोहम्मद एहसन नवेद नियाज़ी साहब से सीखा है। वो ये फरमाते हैं कि इससे कबल जनाब जब ईद यानी कुर्बानी का जो तसव्वुर मिलता है वो दीगर अंबिया के यहाँ भी मिलता है, लेकिन वो सिर्फ सदका की हद तक था, यानी वो बांट दिया करते थे और ख़ुद उस गोश्त को इस्तेमाल नहीं किया करते थे। लेकिन सरकार की उम्मत पे यानी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गोश्त को ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकती है। तो मैं आलिमा सफ़ा फ़ातिमा आपकी समझाऊँगी, और हमारे यहाँ जो ईद का तसव्वुर है, अगर आप इसको कंपेयर करें वेस्टर्न वर्ल्ड से, मादर पिदर आज़ाद हैं, वहाँ कोई क़ुयूदात नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक औरत को वो प्रेस्टीज मिल रही है, वो मकाम मिल रहा है। सैयदा हाजरा का रोल हम देख रहे हैं, उनका दौड़ना अल्लाह को कितना भा गया कि जनाब रहती दुनिया तक सई को जारी फरमा दिया। क्या फरमाएंगी इस्लाम में जो खुशी का तसव्वुर है? जी बिल्कुल, दीन इस्लाम में खुशी का, बल्कि आप यूँ ले लीजिए कि इंसान की फितरत का तकाजा है। जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया था कि जिस तरह जिस्म थक जाते हैं इसी तरह दिल भी थक जाता है। अल्लाह, लिहाजा आपको तजदीद की ज़रूरत होती है, आपको इंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है। और ये देखिए, दीन इस्लाम इसका मतलब है कोई खुश्क मज़हब नहीं है जी, क्योंकि इंटरटेनमेंट एक फ़ितरी तकाज़ा है। तो वो गैर मुस्लिमीन भी इसके ऊपर ज़ाहिर है कि फोकसफुली इसको बल्कि इंजॉय भी करते हैं, मनाते भी हैं, अपनी सेलिब्रेशंस के दिन भी मुकर्रर करते हैं। लेकिन दीन इस्लाम जिस तरह हमें उसूल इनायत फरमा रहा है वो बुनियादी तौर पर बेस करते हैं इस चीज़ पर कि आप इस तरह खुशियाँ मनाएं कि अपना जानी नुकसान ना हो, अपना माली नुकसान ना हो, दीन का किसी एतबार से नुकसान ना हो और दूसरों के लिए बाइस ज़रर ना बने। जी, ये एक जामे उसूल के तौर पर दिया जा सकता है कि अगर इन चीज़ों को आप पेश नज़र रखें तो वो ख़ास जो दीन इस्लाम हमें सिखा रहा है कि सेलिब्रेशन करना मना नहीं है। जैसा कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने भी फरमाया कि मैं अपने आप को, यानी आप ये कह लीजिए कि तफरीह का जो सामान होता है मैं वो ख़ुद अपने लिए इख्तियार करता हूँ। वजह क्या है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हक़ ताला की इबादत के लिए अपने आप को मुस्तईद कर लूँ, दोबारा तैयार हो जाऊँ और दीन की खिदमत के लिए दोबारा अपने आप को अपनी तजदीद कर लूँ। इसलिए हम देखते हैं सहाबा किराम का भी यही मामूल है कि कुछ ना कुछ अपना इंटरटेनमेंट का ज़रिया सहाबा की ईद कैसी होती है? जायज़ तरीक़े से हो। सादगी का मतलब ये कि कुछ ना, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद के दिन मैं एक वाक़या भी यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ुरबानी करने का जो मामूल है वो तो ज़ाहिर है कि हमारा एक शियार है, उस पर तो अमल करते ही हैं। और शियार से एक बात ये भी अर्ज़ कर दूँ कि शाइर इस्लाम को ज़िंदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सेलिब्रेशन का हमें हुक्म दिया है। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी फरमा सकता था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस याद को जहन में ताज़ा रखना, इसका ज़िक्र करते रहना, सिर्फ इतना नहीं बल्कि फरमाया सेलिब्रेशन के तौर पर कि सब उस खुशी में शामिल हो जाएं, सब उस ख़ास वाक़े को याद करने में शामिल हो जाएं। इसलिए ये बाकायदा ईद उल अज़हा की सूरत में हमें दिया गया। बाकी यह है कि सहाबे किराम का ईद मनाने के एतबार से जो हमें रिवायात में मिलता है, सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त ये तमाम जो ईद के मामूलात हैं वो नमाज वगैरह की अदायगी के बाद अपने घर पर तशरीफ़ फरमा थे और दौलत अक़दस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पीछे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ फरमा है। और बाहर जो खेल तमाशे शरीयत की जायज़ क़ुयूदात के साथ जो वहाँ पर मुनक़िद हो रहे थे उनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे छुप कर देख रही हैं।
گویا کہ یہ دین اسلام ہمیں تصور دے رہا ہے کہ اس چیز کو تفریح تباہ کو منع نہیں فرما دین اسلام بالکل منع نہیں فرماتا. بس یہ ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. ہم اپنی خوشیاں تو حاصل کر رہے ہیں, ہم دوسری جو غیر مسلم اقوام کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے دوسرے کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ جی حقوق پامال ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنے اعتبار سے کر لیں جس طرح آپ انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں, لیکن دین اسلام ہمیں یہ تصور نہیں دیتا. ہم کسی کے حقوق بھی پامال نہیں کریں گے اور اپنی ذات کو بھی ضرر نہیں پہنچائیں گے. ہم اپنے مال کا نقصان نہیں کریں گے, ہم اپنی جان کا نقصان نہیں کریں گے, بیجا مال بھی ضائع نہیں کیا جائے گا. شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر خوشیاں منائی جائیں تو بالکل وہ شریعت مطہرہ اس کو نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ قرار دیتی ہے. دین اسلام دین فطرت ہے. سمیرہ اور سحر میں آپ کی سمت آؤں گی, اور آپ کو کیسی لگی ہماری پیاری صفا کی گفتگو, اور آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ یعنی ہمارا دین ہمیں روک نہیں رہا, ہماری فطرت کے تقاضوں کے مطابق بڑے پیارے سے ہمیں احکام مل رہے ہیں نا, کیا فرمائیں, کیا کہیں گی؟ نہیں, بہت اچھی بات کہی انہوں نے صفا نے, اور یقیناً ہمیں اس سے سیکھنے کا بہت اچھا وہ ملتا ہے راستہ کہ ہم سیکھیں ان سے. اور QTV ویسے بھی دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, ہر جو عالم دین ہیں, یہ لوگ عالمہ ہیں, ہمیں بہت اچھی باتیں سکھاتی ہیں جو ہمیں نہیں بھی پتہ ہوتا, ہم وہ پرسنلی بھی ان سے پوچھتے رہتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں بھی ایک سنوار آئے اور ہم بھی غلط کام کرنے سے بچ سکیں. اچھا یہ بتائیے کہ میں نے جیسے امبر نے بھی ہمیں بتایا کہ جب سے یعنی آپ QTV پہ آ رہی ہیں اور لوگ آپ کو یعنی سنتے ہیں اور آپ ثنا خوانی کرتی ہیں, تو کیسا لگتا ہے حضور کی ثنا خوانی کرنا, یہ اعزاز ملنا؟ کیا بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ, بالکل. اور یہاں سب کا پیار اور محبت تو, اور باہر بھی سب دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے, آپ نے کہا کہ فرزانہ ان سے بہت محبت کرتی ہیں, تو ان کی بھی ایک خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ ظاہر ہے کہ کوئی ایک خاص بندہ ہمیں بہت چاہے, بہت پیار کرے. تو اسی طرح مارا اور سمیرہ بھی ہم سے بہت محبت کرتی تھیں. ایک دفعہ انہوں نے گفٹ بھی بھیجے تھے امتیاز آپا کے لیے, میرے لیے اور سحر کے لیے. اچھا, شال دی تھی اور رنگز دی تھیں, تو وہ ہم پہن کے بھی سیٹ پر مطلب عید کے شو میں ہی بیٹھے تھے. تو وہ ابھی بھی کانٹیکٹ میں رہتی ہیں, بہت پیار کرتی ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ سب ثنا خوانی کے صدقے ہی یہ محبت ہمیں ملتی ہے. سرکار کا نام جڑا ہے ہمارے ساتھ, تو ظاہر سی بات ہے یہ محبت ملتی ہے. سبحان اللہ, سبحان ورنہ شاید ثنا خوانی کے توسط سے ہم اگر اتنی محبت نہ ملتی تو ہم کچھ بھی نہیں تھے. سحر جی, میں یہ کہوں گی کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہمارے دین میں ماشاءاللہ اتنی اچھی اچھی باتیں یہ لوگ بتاتی ہیں, تو ہم پرسنلی آپس سے بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں. کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے, ہمارے دین میں الحمدللہ بہت آسانیاں ہیں, کوئی مشکلات نہیں ہیں, اور دل کرتا ہے خود ہی کہ اچھی سے اچھی چیز کریں, اچھی سے اچھی باتیں دوسروں تک پہنچائیں. دین میں الحمدللہ اتنی آسانی ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے ہمارے دین میں کہ ہم لوگ نماز ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے بھی ہیں, لیکن اللہ نہ کرے ہم لوگوں پہ, ہم مسلمان بہت خوش نصیبی ہے ہماری الحمدللہ کہ ہم پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. ہم ایک حدود میں رہ کر سب کچھ کرتے ہیں اور ہم آگے وہی پہنچانا چاہتے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. الحمدللہ ہمارے دین میں ماشاءاللہ بہت آسانی ہے. اور ایک انہوں نے ذکر کیا کہ ماشاءاللہ فرزانہ باجی جو ہیں اور یہ امارہ اور سمیرہ ہیں, تو اس طرح فینس میں ماشاءاللہ تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے. تو سکینہ فاطمہ جو ہم سب سے بہت محبت کرتی ہیں, اور سیدہ ام حبیبہ وہ بھی سکینہ بہت پیاری بہن ہے, بہت پیاری, ان سب سے بہت محبت, بہت پیاری پیاری کلپس وہ لگائی ہوتی ہیں, اور وہ پکس ایک دوسرے کی لے رہی ہوتی ہے. ام حبیبہ بھی ماشاءاللہ, جس کا بھی برتھ ڈے ہوتا ہے نا, وہ خصوصی ویڈیو بنا کے سیلیبریشن کرنا. اتنے پیارے لوگ ہیں یہ, اور اتنے پیاری پیاری ان کی عقیدتیں, محبتیں ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں, درود پڑھتے رہیے. السلام علیکم.